So we left at personality disorders. So there are three types of personality disorders. I'll now share the screen. Starting the broadcast. तीन तरह के क्लस्टर डिसऑर्डर्स होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी. So we'll select books and then go to our topic. I hope you guys can see it. Okay, bismillah. So cluster A जो है उनको हम कहते हैं the weirds, ठीक है, and इनकी genetic association जो है is with the schizos, the people who have schizophrenia, ठीक है. There is a chance that they will give birth to these people, or these people might give birth to schizos. कोई genetic association होती है. तो paranoid को अगर मैं इनको वन लाइनर्स में कन्वर्ट करूंगी, दे आर सस्पिशियस पीपल, ठीक है. दे आर वेरी एक्यूजेटरी एंड हाइपर विजिलेंट एंड स्कीजॉइड, लाइक वी डिस्कस बिफोर, ये लॉनर्स होते हैं, ठीक है. और ये इस तरह के लॉनर्स होते हैं दैट दे आर इनडिफरेंट टू योर हेट, दे आर इनडिफरेंट टू योर ओपिनियन, एंड अनलाइक अवॉइडेंट पीपल, इनको आपके रिजेक्शन से कोई मसला नहीं होता. दे आर नॉट रिजेक्शन सेंसिटिव and they like to be alone, left alone, aloof and loners. So that would be the one word definition. Schizotypal are odd type people. They have odd beliefs or magical thinking. You will find them in their basements doing stranger things stuff, ठीक है. Very awkward people. So the word you might want to remember are the ones that I've highlighted in purple. Acha. Okay, cluster B are the wild ones. Genetic association is with mood disorder, and they are further divided into antisocial, borderline, histrionic, and narcissistic. The right word for antisocial ones is that they have no disregard for other people, for their rights, and they will violate the rights of other people, sorry, other people, and there would be lack of remorse. They will not feel bad for it. And एंटी सोशल का डायग्नोसिस लेने के लिए आपके पास जो क्राइटेरिया है वो ये है कि योर पेशेंट मस्ट बी मोर देन 18 years old के, और 18 years old से पहले जब वो बच्चा था तो उसके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर था, 18 साल से उम्र जब उसकी कम थी. If the patient is less than 18, then it is conduct disorder. The same thing that we established pehle, that less than 18, okay, I should be writing it somewhere up there. So less than 18 would be conduct disorder, more than 18 would be antisocial disorder. Okay. Now moving on to the borderline, they are very emotional people, and थोड़ी सी टेंडेंसी इनके अंदर होती है सेल्फ हार्म की, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा, खुद का नुकसान करने की, सेल्फ म्यूटिलेशन, सुसाइडलिटी होती है, और इमोशनल एम्प्टीनेस होती है. और इनके लिए मैंने आपको एक नगेट बताया था, बॉर्डरलाइन. You have to remember these three words together: splitting, that either all is good or all is bad. ये वाला फिनोमिना कि सारे डॉक्टर्स अच्छे होते हैं और सारी नर्सेज बुरी होती हैं, या सारी नर्सेज अच्छी होती हैं और सारे डॉक्टर्स बुरे होते हैं. ये इनकी सोच होती है. नथिंग इज ग्रे, ऑल इज ब्लैक और ऑल इज वाइट. और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी. अच्छा, ना एफए में इस पे इतना फोकस किया है और ना यूवर्ड में इतना फोकस किया कि व्हाट इज डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी. यू कैन गूगल इट, but you have to remember these three words together: borderline, dialectic, and splitting. Histrionic, very theatrical people, attention seeking, dramatic speech karenge, and good emotional expression, and you know,
sexually provocative, अपना आप दिखाएंगे, may use their physical appearance to draw attention towards themselves. Narcissistic, शिकार होंगे grandiosity का, I'm the best and always the best वाला, और sense of entitlement, और दूसरों की कोई वो नहीं करेंगे ख्याल, they will lack empathy for other, अपने लिए must be the best वाला इनका वो होगा, and they are often envious of others. Cluster C are the worrieds one, and इनकी genetic association है with anxiety disorder. इनकी आगे types हैं avoidant, obsessive compulsive and dependent. Avoidant के लिए क्या है? They're very similar to schizoids, but they are schizoid की तो परवाह नहीं थी ना कि अगर आप उनको नहीं उनके साथ मिल रहे, उनसे दोस्त नहीं बन रहे, लेकिन avoidant जो है वो पसंद करते हैं कि लोग उनको मिलें या वो लोगों को मिलें या लोग उनको पसंद करें, लेकिन दे आर वैसे ही इंट्रोवर्ट्स, दे आर हाइपर सेंसिटिव टू योर रिजेक्शन, टू योर क्रिटिसिज्म, सोशली थोड़े से इनहिबिटेड होंगे, टिमिड से होंगे, डरपोक से दिखने में लगेंगे, but they do desire relationship with others, like they would want a friendship with you or a relationship with you, unlike the schizoids. Okay, the next one is obsessive compulsive, very rigid, perfectionists, controlling, and egocentric. Matlab their behavior would be consistent with their beliefs. Unlike OCD, which was idiosyntonic, I think. Dependent. They are clingy people. They need your support and are very submissive. The word that you should remember is submissive, and clingy to is, and they often get in abusive relationships, और कौन इनके साथ usually relationship में जाते हैं? Narcissists or the OCD guys, obsessive compulsive or the narcissistic type, are well paired with the dependent type because they are getting what they want and they are getting what they want. नेक्स्ट इज, ये हमारे पास आ गए हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। तो पहले है आपके पास मिलिंगरिंग। मिलिंगरिंग इज बेसिकली फॉल्सिफिकेशन फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। किसी एक्सटर्नल गेन के लिए कोई झूठ बोले तो उसको आप मिलिंगरिंग कहते हैं। देयर इज अ वेरी नाइस चार्ट डाउन हियर कि मिलिंगरिंग के अंदर सिम्टम्स जो आपका पेशेंट क्रिएट करता है, सॉरी, तो सिम्टम्स आर इंटेंशनल, जानबूझकर होती है। मोटिवेशन भी उनकी इंटेंशनल होती है और उनका मतलब क्या होता है? दे वांट एन एक्सटर्नल गेन, और जैसे ही वो गेन उनको मिल जाता है तो ये जो उनकी सारी सिम्टमोलॉजी है, इट सीजेस आफ्टर द गेन। नाउ लेट्स रीड। सिम्टम्स इंटेंशनल, मोटिवेशन इंटेंशनल, पेशेंट फेक्स, exaggerates to gain an external gain like avoiding work or obtaining a compensation, and they do not follow the treatment or follow up or the diagnostic tests, and their complaint cease after they gain what they want. Factitious disorders are falsification of the symptoms. अब factitious disorder के अंदर क्या है? symptoms intentional है, ठीक है, मोटिवेशन उनको नहीं पता उनकी क्या होती है, इट इज अनकॉन्शियस, और गेन को इनका इंटरनल होता है। लेट्स रीड इट। सिम्टम्स इंटेंशनल, मोटिवेशन अनकॉन्शियस, पेशेंट consciously creates physical or psychological symptoms in order to assume the sick role, और कोई इंटरनल गेन होता है जैसे सिंपैथी या अटेंशन लेना चाह रहे होते हैं। तो इसकी आगे से टू टाइप्स हैं। Factitious disorder imposed on self, like self-harm, and it is called the Munchausen syndrome. और इसके अंदर क्या दूसरे वाला कॉन्सेप्ट factitious disorder imposed on an other, like Munchausen syndrome by proxy, ठीक है। अब Munchausen syndrome जो है उसके अंदर, जिसके अंदर वो खुद का नुकसान कर रहे हैं या खुद फेक कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल हॉस्पिटल एडमिशन,
and willingness to undergo invasive procedure, more common in females and healthcare workers. अब इसकी एक classic example was a nurse who would a healthcare worker. इन्होंने लिखा हुआ है more common in females and healthcare workers. So what would she do? That she would cut her skin open and then introduce bacteria to the tears, और फिर वो उसको इन्फेक्शन होती थी एंड शी वुड गेट ट्रीटेड फॉर दैट. तो जब उन्होंने उसका वर्कअप करके देखा तो इट वाज ई कोलाई एंड शी वाज प्रोबेबली पुटिंग fecal matter over her scars or over the torn skin to get infected. So she was caught. और उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन एन अदर की. बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपके पास है. अभी जो एक केस चला है, मुझे उसका लड़की का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें ये था that the mother was using her child and she was showing that she is disabled but she was not, and she was physically harming this child and fabricating this story and she was her caregiver. और फिर उसी बच्ची ने अपनी जो मदर है उसको क्या कहते हैं, she murdered her mom. तो ये बड़ा ज्यादा केस हमारे ही टाइम पर चला है. I forgot the girl's name. If I remember I'll tell you. लेकिन या factitious disorder has two types: imposed on self and imposed on another. The one on self is called Munchausen syndrome. The other is called Munchausen syndrome by proxy. Now coming forwards to the somatic symptom and related disorder. इसके अंदर क्या है? Your symptoms are unconscious. They are not intentional. Motivation भी unconscious है और gain भी कोई नहीं होता. ठीक है, पढ़ते हैं symptoms. You do not have to confuse this with general anxiety disorder. The symptoms are unconscious. Motivation is unconscious. Symptoms जानबूझ के produce नहीं की जा रही होती. Further, 3 types हैं. Somatic symptom disorder, more than one bodily complaint like abdominal pain or fatigue lasting from months to year, or may co-occur with a medical illness. Treatment क्या है? You will ask them for regular office visits with the same physician and psychotherapy. Conversion disorder क्या है? Neurological symptoms इस तरह के होंगे which will be incompatible with anatomy and physiology. This is also called functional neurological symptom disorder, like loss of sensory or motor function, paralysis, blindness, mutism की form में. For example, someone's father died and they suddenly say that they have gone blind. जैसे किसी के वालिद की वफात हो गई है and the next day the girl is unable to speak or is unable to see and she is not feigning it, she is not acting. उसको वाकई ही लग रहा है that I've gone blind and this is due to the acute stressor. She is indifferent towards her symptom. Whoever speaks French can speak this. La belle indifference. ठीक है, उसको नहीं पता कि मैं ये symptoms produce कर रही हूँ. It is more common in females, young adults. ठीक है. Now we'll move forward to the third type, which is the illness anxiety disorder. There are either no symptoms or few symptoms. इतने ये preoccupied होते हैं with acquiring a certain disease or having that serious illness that despite medical evaluation and reassurance, they do not agree that they are okay. For example, किसी को breast cancer हुआ है और उसकी बहन जो है वो बार बार रीअश्योरेंस मेडिकल इवेल्युएशन करवाए और कोई मसला ना निकले, लेकिन वो फिर भी कहे कि नहीं है मसला मुझे. ठीक है, और उसको भी ना हो. Okay, let's move on to the next part. Eating disorders. Eating disorders, let's do it on the chart first, then we'll come here. Where is my free form?
Okay, this is our eating disorder वाली बात. Anorexia nervosa and bulimia nervosa. ठीक है. Anorexia nervosa के अंदर आपके पास होगा weight loss, self induced vomiting की वजह से since I will be putting fingers in my throat, तो वो जैसे मैं ऐसे करूंगी तो मेरे ये कैलसेस जो है इन पे बाइट हो जाएगा. तो व्हेन यू विल सी, तो मेरे ये इधर निशान होंगे हाथों पर, जगह जगह वो बाइट के. ठीक है. एंड एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से मेरी एक्सेसिव सेलिवेशन होती होगी, और जिसकी वजह से मेरे पेरोटिड ग्लैंड को ज्यादा काम करना पड़ता होगा, तो पेरोटिड ग्लैंड की भी स्वेलिंग भी होगी. ठीक है. और जब जब वॉमिटिंग की बात होगी तो लेट्स इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द क्या कहते हैं उसको, इसकी भी बात कर लेते हैं, बीजीज वगैरह की बात. तो वॉमिटिंग जब भी होगी तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा, बिकॉज यू आर थ्रोइंग HCl आउट. तो द pH will be increased, the bicarbonate will increase and you will have metabolic alkalosis. Unlike vomiting, अगर डायरिया होगा तो you will have non-anion gap metabolic acidosis. डायरिया की वजह से pH और बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगा. और अगर कोई वो ले रहा है, फ्यूरोसिमाइड ले रहा है, ड्रग है जो कि एक डायोरेटिक है, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन एल्कलोसिस होगा. ये MCQ आ जाता होता है विद इन रिलेशन टू द ईटिंग डिसऑर्डर्स. और ईटिंग डिसऑर्डर में आपके पास लिखा हुआ है BMI लेस देन 18.5, और यू वर्ड के अंदर 17.5 भी मैंने देखा है. बुलिमिया नर्वोसा क्या है? रिकरेंट ईटिंग एपिसोड्स होती हैं, बिंज टाइप. इसके अंदर भी पेरोटिड स्वेलिंग एंड कैलिसेस होते हैं, एंड सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग. तो आप पकड़ेंगे इस डायग्नोसिस को BMI से और वाइटल साइंस से. नाउ let's read through the text. Anorexia में क्या है? You will see ketosis, anemia, and Lenogo are fine here on the body of the patient. और उसके अलावा you will see amenorrhea. Low कहाँ गई? हाँ, इसके अंदर आप देखोगे कि BMI will be less than 18.5 kg per मीटर स्क्वायर फॉर एडल्ट्स. ठीक है. और आगे से इसकी टाइप बताई हुई है दो, बिंज ईटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग टाइप. बिंज ईटिंग में फॉर द लास्ट 3 months क्या होगा? रिकरिंग पर्जिंग बिहेवियर होगा, लाइक शी वुड बी टेकिंग अ लेक्सेटिव और अ डायोरेटिक, और सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग और बिंज ईटिंग ओवर लास्ट 3 months. एटलीस्ट 3 months के लिए वो इस तरह करें, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद हाइपोकैलेमिया. रिस्ट्रिक्टिंग टाइप जो है उसके अंदर शी विल बी डाइटिंग, फास्टिंग, ओवर एक्सरसाइजिंग, और इसके अंदर पर्जिंग बिहेवियर नहीं होता, एंड इट हैज टू बी फॉर 3 months टू. रीफीडिंग सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर क्या होगा? आप सडनली पेशेंट को खाना दोगे, ज्यादा कैलोरी इनटेक होगा, ज्यादा फूड इनटेक होगा, तो आपकी इंसुलिन इंक्रीज करेगी, और इंसुलिन जब इंक्रीज होगी तो हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया होगा, और उसकी वजह से क्या होगा? आपके पास आएंगी कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, रेब्डोमायोलाइसिस, सीजर्स. तो इसलिए रीफीडिंग जो है वो बहुत स्लो करनी पड़ती है. द कैलोरी इनटेक शुड बी वेरी स्लो. ट्रीटमेंट क्या है इसका, रीफीडिंग सिंड्रोम का? यू rehabilitate them nutritionally and give them psychotherapy and olanzapine. Olanzapine is famous for weight gain. Bulimia nervosa, recurring binge eating episode at least weekly over last 3 months. ठीक है, that is the criteria. ठीक है. BMI इनका ऑफन नॉर्मल होता है. You will see increased serum amylase, और वॉमिटिंग वाली जो टाइप है उसके अंदर you will see animal erosion. ठीक है. और हमने कहा था कि डॉर्सल हैंड कैलिसेस बने होंगे फ्रॉम इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, विच इज कॉल्ड रसल्स साइन. और इनको एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से, थ्रोइंग आउट एसिड, इस वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी हुआ होगा. ट्रीटमेंट इनका भी है न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, SSRIs एंड साइकोथेरेपी. और ब्यूप्रोपाइऑन आप इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड
ड्यू टू सीजर रिस्क। ये ब्यूप्रोपाइऑन आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैंने इसके आगे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सीजर्स, बिकॉज इसका एक बहुत बुरा साइड इफेक्ट जो है वो है सीजर्स। तो ब्यूप्रोपाइऑन आप नहीं देते बिकॉज ऑफ एंड ऑफ इट्स प्रोपेंसिटी टू इंड्यूस सीजर्स। उसके बाद आ जाओ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ, which is recurrent episodes of binge eating at least weekly, same criteria bulimia की तरह over last 3 months। बस क्या फर्क है इसके अंदर, there is no vomiting but there is a diabetes risk, most common eating disorder in the adults। and फर्क बस क्या है बुलिमिया से कि देर आर नो इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर, लाइक उसमें तो वो डायरिया इंड्यूस कर रहे थे और बाय टेकिंग डायोरेटिक्स एंड लेक्सेटिव्स, और उसके अलावा सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग हो रही थी। तो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। और इसका क्या ट्रीटमेंट है, साइकोथेरेपी, SSRI एंड एवरीथिंग and anything that I've underlined, you underline it on your book as well. You have to learn that. Lisdexamfetamine, ठीक है? You have to learn this drug. You give it in the binge eating disorder. Real deal में आपको इतना direct test नहीं करते, but it is a U-word question. Pica, associated with iron deficiency anemia, also occurs during pregnancy and also occurs in children born to mothers with iron deficiency anemia, और बाजुकात किसी ट्रॉमा की वजह से भी होता है। इसमें क्या होता है कि यू ईट नॉन फूड सब्सटेंसेस लाइक आइस चिप्स एंड डर्ट, सम पीपल ईट देयर हेयर, सम पीपल ईट पेंट चिप्स फॉर, और क्राइटेरियन क्या है, लाइक दे हैव टू डू इट फॉर मोर देन 1 month, ठीक है? ट्रीटमेंट है न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन एंड साइकोथेरेपी फर्स्ट लाइन एंड SSRI सेकेंड लाइन। जेंडर डिस्मॉर्फिया, डिस्फोरिया, इसके अंदर क्राइटेरियन है लास्टिंग मोर देन 6 months, you feel incongruent with your gender ID and the gender that is assigned to you at birth. For example, you are a female and you feel like you should have been born a boy, and you feel that feeling for more than 6 months, then you are experiencing gender dysphoria, ठीक है? उसके आगे एग्जाम्पल्स में है आपके पास ट्रांसजेंडर्स एंड people who do transvestism. Transvestism is just cross dressing. However, transgender is an individual who experiences incongruence with their gender ID and the gender assigned at birth, ठीक है? फिर वो इसको चेंज करने के लिए they go through the surgeries and hormonal pills, वो लेते हैं ताकि they can change their gender, and non-conformity to one's own gender itself is not a mental disorder. किसी ज़माने में it was classified as a mental disorder and people were sent to a mental asylum, लेकिन अब ऐसा नहीं है। Sexual dysfunction के आगे further जो types हैं, there's a problem with someone's desire, either they have a hypoactive sexual desire or there's complete sexual aversion, या कोई अराउजल में प्रॉब्लम है लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, या ऑर्गेज्म में प्रॉब्लम है, एनऑर्गेज्मिया है, प्री मेच्योर एजैकुलेशन है। देयर वाज दिस MCQ जिसमें मैंने शायद अपनी बुक में लिखा हो, यू वर्ड के अंदर था बस MCQ कि फॉर प्री मेच्योर एजैकुलेशन वी गिव, मैंने लिख लिया था, कुछ यू वर्ड के MCQ इस तरह के होते हैं कि आप बस लिख लेते हो, पेरोक्सिटीन इसमें देते हैं, ठीक है? और या कोई सेक्सुअल पेन डिसऑर्डर है जैसे पेनिट्रेशन डिसऑर्डर है या जेनेटोपेल्विक पेन है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका फर्दर ये प्रॉब्लम्स है जो इसी अम्ब्रेला के अंडर आ जाती हैं। और DDs क्या है आपके पास, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल आपको ये इस बात पर MCQ आया हुआ है कि अगर तो किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ठीक है, लाइक when they are with their partner they do not
experience an erection, and even at night they do not have an erection, then it is erectile dysfunction. But if they have erectile problem in front of their partner, but if the nighttime erections are still occurring, then it's a psychological problem. ठीक है, they are either confused or not comfortable with their partner. एंडोक्राइन प्रॉब्लम, डायबिटीज की वजह से, लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से कोई इशू हो सकता है, न्यूरोजेनिक, किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, पोस्ट ऑप उनकी कोई नर्व कट गई है तो उससे, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो, स्कीमिया हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, या कुछ सब्सटेंसेस जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स में कौन सा है, आपके SSRIs खेलते हैं आपके सेक्सुअल ड्राइव के साथ. उसके बाद स्लीप टेरर डिसऑर्डर हैपेंस इन द स्टेज N3 ऑफ द नॉन रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और ड्यूरिंग द स्लो वेव और द डीप स्टेज आपको ये स्लीप टेरर होता है. दिस इज इनकंसोलेबल टेरर विद स्क्रीमिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट. ठीक है, और बाद में यू हैव नो मेमोरी ऑफ द अराउजल एपिसोड, अनलाइक नाइटमेयर्स जिसके अंदर यू रिमेंबर द स्कैरी ड्रीम, बिकॉज द nightmares happen during the REM sleep, so you will remember it with the mnemonic that if you remember the scary dream, it is a nightmare and it is going to occur during the REM sleep. Triggers आगे उन्होंने लिखे हुए हैं, sleep, fever, lack of sleep. एन्यूरेसिस के लिए क्या क्राइटेरिया है? urinary incontinence 2 times per week for at least 3 months and in a person more than 5-year-old. ठीक है, तो आप उसको डायग्नोज करोगे विद एन्यूरेसिस. पहले आप उसको उसका बिहेवियर मॉडिफाई करोगे विद स्केड्यूल्ड वॉइड्स के, चलो भाई उठो वॉशरूम जाओ, या रात को उसको कहोगे यू कैन नॉट ड्रिंक मिल्क, यू कैन नॉट ड्रिंक फ्लूइड्स बिकॉज यू पी एट नाइट. और with positive reinforcement, if you go for your scheduled voids, then I'll give you a gift. ठीक है, और for refractory cases that are not improving, you set a bedwetting alarm. Or the next thing is you give them oral desmopressin, which is an ADH analog, and imipramine was also being given, but it had a lot of ham side effects. ham side effects हम आगे जाके पढ़ेंगे. Let's move on to narcolepsy. Narcolepsy के लिए क्या है that imipramine is a TCA. इसके ham side effects हम आगे पढ़ेंगे. Narcolepsy is excessive daytime sleepiness occurs due to decreased orexin, which is a hormone or also called hypocretin. और इसका diagnostic criteria है at least 3 times per week for 3 months. ठीक है, इसका ट्रीटमेंट है AMG, amphetamines, modafinil and GHB, which is also called sodium oxybate. ठीक है, it is associated with hypnagogic and hypnopompic hallucinations. सोने से पहले या सोने के बाद hallucinate करता है patient. And narcoleptic nocturnal sleep episode that start with REM sleep, in simple words, sleep paralysis, cataplexy, loss of muscle tone in the limbs after a strong emotional stimulus like you laughed hard. और इसका ट्रीटमेंट है a good oh my god, treatment है good sleep hygiene. You give them scheduled naps or AMG, amphetamines, modafinil and sodium GHB, sodium oxybate. Substance use disorder, आप इसको पढ़ लो ऐसे ही. Maladaptive pattern of substance use involving any 2 of the following in the past years: tolerance, withdrawal, distracted cravings, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, नीयत से ज्यादा इस्तेमाल करना, persistent desire but inability to cut down, time consuming substance acquisition, उसको हासिल, यूज और रिकवर करने में टाइम कंज्यूम करना, impaired functioning at work,
This is a good one to remember. Impaired functioning at work, school or home, social या interpersonal conflicts हो और reduced recreational activities हो. ठीक है? More than one episode of use involving danger, you drove while impaired or had unsafe sex, then you can be diagnosed with a substance use disorder. People are given opioid, analgesics, sedatives, and stimulants to deal with it. We'll study further. These are two new topics. We didn't have them in the previous FA. Gambling disorder diagnosis is made if patient has any four of the following criteria: is preoccupied with gambling, requires more gambling to reach the desired level of excitement, has failed efforts to limit, cut back, or stop gambling, becomes restable or irritable when limiting or attempting to, बस एक addiction बन जाती है, ठीक है? और treatment है इसका psychotherapy. Very important. I got a question from this part. Trans-theoretical model of change, सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है प्री कॉन्टेम्पलेशन, जिसके अंदर आप जो हैं किसी को आपने बदलना है तो यू गिव देम अ मॉडल ऑफ चेंज, और आप उनके साइकियाट्रिस्ट हैं, तो पहले प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में क्या होगा कि वो आपको कहेंगे मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर प्रॉब्लम अव्वल तो प्रॉब्लम है नहीं तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है. फिर प्री कॉन्टेम्पलेशन के बाद कुछ अरसे बाद वो एक स्टेज पे जाएंगे जिसको कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन, जिसमें वो एक्नॉलेज करेंगे कि प्रॉब्लम है लेकिन हम चेंज नहीं हो सकते. ठीक है? फिर है प्रिपरेशन और डिटर्मिनेशन. सॉरी, pre-contemplation is that they deny that they have a problem. Contemplation is that they acknowledge they have a problem but they do not change. And then preparation is they acknowledge and start making small changes or small plans for behavioral change. और यहाँ पर you employ motivational interviewing. ठीक है? That is, you ask them questions, motivational questions. ठीक है? And then is action or willpower, where they execute that plan. Then is maintenance phase, where they maintain the new behavior to such a level that it becomes a part of their personal identity and lifestyle. And then comes relapse, which does not always occur but does occur, regression to prior behavior. So this is the model of change. साइकेट्रिक इमरजेंसीज इम्पॉर्टेंट, एक आधा एमसीक्यू आ जाता होता है, और यूवर्ड के तो हर यूवर्ड में तो हर एक के ऊपर एक एमसीक्यू बना हुआ है. सेरोटोनिन सिंड्रोम जो है वो क्या है? यू हैव इंक्रीज्ड एक्टिविटी न्यूरोमस्कुलर, you have tremors, seizures, hypertonia, hyperreflexia, increased autonomic instability, ठीक है, and altered mental status. और कॉज क्या होता है? एनी ड्रग दैट इंक्रीजेस सेरोटोनिन, जैसे कि आपके ये वाले ड्रग्स, साइकेट्रिक ड्रग्स, मोनोअमीन ऑक्सीडेजेस इनहिबिटर्स, एसएसआरआईज, एसएनआरआईज, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, विलाज़ोडोन, वॉटियोजिटीन, बसपेरोन, ये वाले साइकेट्रिक ड्रग्स. एंड नॉन साइकेट्रिक ड्रग्स में वी हैव ट्रामाडोल, ऑन्डेनसेट्रॉन आप वॉमिटिंग के लिए देते हो, ट्रिप्टेंस, लेंजोलेड, एमडीएमए, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, मेप्रिडीन, सेंट जॉन्स वॉर्ट, ये सारे नॉन साइकेट्रिक ड्रग्स हैं. इनकी इंटरेक्शन से इनको आप या तो याद करें, क्रैम करें, या आप यूवर्ड में देखोगे कि हर एक पे एक एमसीक्यू बना हुआ है. जैसे मुझे एक एमसीक्यू आया था कि सिटालोप्रैम ले रहा है पेशेंट और साथ पेन किलर ले रहा है ट्रामाडोल, और उसको सेरोटोनिन सिंड्रोम हो गया. ठीक है? और इसका ट्रीटमेंट क्या है? आप पहले बेंजोस देते हो, सपोर्टिव केयर देते हो, एंड देन यू गिव सिप्रोहेप्टेडीन व्हिच इज अ सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, अगर इनसे कोई इंप्रूवमेंट ना आए. प्रिवेंशन क्या है कि आप
साइमल्टेनियस दो सेरोटोनिन वाले ड्रग्स नहीं दोगे, उन दोनों के दरमियान एक वॉश आउट पीरियड रखोगे ताकि पेशेंट को सेरोटोनिन सिंड्रोम ना हो। ठीक है। उसके बाद है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। पेशेंट ऑलरेडी ये वाले ड्रग्स ले रहा था, सेरोटोनिन कंटेनिंग ड्रग्स, ऊपर से उसने कोई टायरामिन रिच फूड खा लिया जैसे एज्ड चीजेस, क्योर्ड मीट्स, वाइन, चॉकलेट, और साथ वो ले रहा था ड्रग, ये वाला ले रहा था मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। और अ, उसने यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट्स के दरमियान सिरोटोनर्जिक ड्रग्स के दरमियान स्विच करते हुए कोई वॉश आउट पीरियड नहीं रखा। इन तीन चीजों की वजह से, नंबर वन टायरामिन रिच फूड, MAO inhibitors, and having no washout period, he now has hypertensive crisis. वजह, टायरामिन क्या करता है, इट डिस्प्लेसेस अदर न्यूरोट्रांसमिटर्स लाइक नॉरएपिनेफ्रिन इन द सिनेप्टिक cleft, and in result there is increased sympathetic stimulation. Treatment is phentolamine. Next is neuroleptic malignant syndrome. Okay, antipsychotics cause this. Typical antipsychotics cause more than atypical, or there is also genetic predisposition to have this syndrome. इसके अंदर क्या होता है, you have a malignant fever. फीवर के अलावा क्या होगा, मायोग्लोबिन यूरिया, फीवर, इंसेफेलोपैथी, वाइटल्स आपके अनस्टेबल, एंजाइम्स फॉर एग्जांपल सीके जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। एंड देयर वुड बी मसल रिजिडिटी, लेड पाइप रिजिडिटी। दोगे आप क्या, इसके लिए आप दोगे डेंट्रोलिन एंड डोपामिनर्जिक्स लाइक ब्रोमोक्रिप्टीन एंड अमेंटाडीन। बेंजोस भी दे सकते हो, और साथ ही साथ आप डिसकंटिन्यू कर दोगे एंटीसाइकोटिक्स को, एटिपिकल साइकोटिक्स या जो भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आप दे रहे हो आप उनको डिसकंटिन्यू कर दोगे। डिलीरियम ट्रेमेंस। डिलीरियम ट्रेमेंस क्या है कि जो लास्ट अल्कोहलिक ड्रिंक आपने लिया था, मैं बार बार आप बच्चों को तंग कर रही हूँ, आप लोगों ने नहीं लिया था, किसी पेशेंट ने लिया था, ठीक है, उससे आगे इधर लिखा हुआ है 2 to 4 days, बट ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ये डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, और वो कह रहे हैं 2 से 4 दिन के अंदर ऐसे किसी भी टाइम अगर पेशेंट को ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो जाए, सीजर्स, ट्रेमर्स, हेलुसिनेशन में से कुछ भी हो जाए, तो उसको आप डिलीरियम ट्रेमेंस कहते हो। अगर एक ही दिन में पीक करके 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको सीजर्स हो तो वो खाली सीजर्स होंगे, लेकिन वो दिन गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, उससे अगले 2-4 दिनों में विद इन द नेक्स्ट 7 days आफ्टर द लास्ट ड्रिंक उसको ये वाली सिम्टम्स आई, तो आप कहोगे ये डिलीरियम ट्रेमेंस में चला गया, और इसके लिए आप देते हो लॉन्ग एक्टिंग बेंजोस लाइक लोराज़ेपाम। नेक्स्ट इज एक्यूट डिस्टोनिया, occurs due to typical antipsychotics, anticonvulsants like carbamazepine and metoclopramide। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सडन ऑनसेट ऑफ मसल स्पैज्म, स्टिफनेस एंड ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस, आंखें घूम जाती हैं, occurring hours to days after the medication used, and finally leads to laryngospasm, जिसकी वजह से फिर आपको इंट्यूबेशन करनी पड़ती है, और इसका इलाज है बेंस्ट्रोपीन और डायफेनहाइड्रामीन। These are more of step 2 things, learning the drugs, but for